Bark. It is the outermost layers of the stems and roots of woody plants. Trees, climbers, and shrubs have bark. It overlays the wood and consists of the inner bark and the outer bark. The inner bark is living while the outer bark is non-living. bark यानी छाल ये तना और जड़ के बाहरी परत हैं जो लकड़ी नुमा पौधों, पेड़, चढ़ने वाले पौधों और झाड़ियों में पाए जाते हैं। ये लकड़ी को ढकते हैं और इनके दो परतें होती हैं, एक अंदरूनी दूसरी बाहरी। अंदरूनी परत जीवित होती है जबकि बाहरी परत मृत होती है। Trunk of tree. It is the stem and main wooden axis of a tree by which tree is identified. It is the important for timber production. It occurs both in woody plants as well as non-plants such as palms and other monocots. In all plants, trunks thicken over time due to formation of rings. They can be damaged even by sunburn. ट्रंक ये ऐसे तने हैं जो पेड़ के मुख्य धुरी होते हैं जिससे पेड़ की पहचान होती है। ये लकड़ी उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। ये लकड़ी नुमा पौधे या खजूर या अन्य एक बीजपत्री वाले पौधे में पाए जाते हैं। सभी पौधों में ट्रंक समय अनुसार मोटे हो जाते हैं। रिंग का परत चढ़ने के कारण ये सूर्य प्रकाश से भी खराब हो जा सकते हैं। Leaves. A leaf is a flattened organ of a plant, usually born above the ground and specialized for photosynthesis. A primary photosynthesis tissue is located on the upper side of the leaf, but in some plant these tissues are located on both sides of the leaf. Mostly leaves are green in color due to the presence of chlorophyll, but some leaves have white patches and they are called variegated leaf. पत्ता सपाट तंतु है जो जमीन के ऊपर पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश संश्लेषण वाली कोशिका ज़्यादातर पत्ते के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, पर कुछ में ये दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल नामक कोशिका के कारण, पर कुछ पत्तों में सफ़ेद धब्बे या अन्य रंग पाए जाते हैं जिनके कारण से इनको खास नाम दिया गया है और इन्हें वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तों का भाग। First, stalk. It is also called petiole. The part of plant that connects stems and leaf together are known as stalk. Stalk. इन्हें हम petiole भी कहते हैं। यह वह भाग हैं जो पत्तों को तना से जोड़ते हैं। Second, leaf blade. The flat and broad part of the leaf is called leaf blade. Leaf blade. पत्तों में जो सपाट और चौड़े भाग होते हैं उन्हें हम लीफ ब्लेड कहते हैं। थर्ड, मेन वेन। द मिडल वेन which carries water and prepared food to and from stem. The leaf blade is covered with many small tubes called vein attached to the main vein. Main vein. लीफ ब्लेड कई सारी पाइप की आकार के तंतु से भरा है जो पानी और बने हुए खाने को तना से या तना तक पहुंचाने का कार्य करता है। उन्हें हम मेन वेन कहते हैं। फोर्थ, स्टोमाटा। ऑन द लोअर surface of the leaf have many pores called stomata. It takes carbon dioxide and gives out oxygen with extra water. It is surrounded by two bean-like structure called guard cell which regulate the opening and closing of stomata. Stomata.
पत्तों के निचले सतह पर कई सारे अति सूक्ष्म छेद होते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ अतिरिक्त पानी को छोड़ते हैं। ये बीन के आकार के 2 गार्ड कोशिकाओं से घिरे हैं जो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने का संचालन करती हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, all the green plants or some non-green plants uses a carbon dioxide from atmosphere and water from soil with the help of chlorophyll in the presence of sunlight to prepare their food and oxygen as byproduct. This procedure is called photosynthesis. Plant take water from root hair through osmosis and carbon dioxide from air by stomata through diffusion process. They prepare food in the form of sugar which later becomes starch for storage purpose. यानी सभी हरे पौधे या कुछ गैर हरे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से सोख कर और पानी जो कि जड़ों के माध्यम से उनके पत्तों तक पहुंचते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के मौजूदगी में अपने खाना को बनाते हैं और ऑक्सीजन को एक अन्य पदार्थ के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं। इसी पूरे प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे आमतौर पर पानी जड़ों के माध्यम से जड़ों में पाया जाने वाला धागे की आकार का रूट हेयर जो कि ऑस्मोसिस नामक एक खास प्रक्रिया करता है उससे वो पानी को सोखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो हवा के माध्यम से स्टोमाटा नामक ग्रंथि से डिफ्यूजन के प्रक्रिया द्वारा सोखते हैं। इन सभी पदार्थों का इस्तेमाल वो खाना बनाने के लिए करते हैं। ये खाना चीनी के रूप में होता है जिसे वो बाद में बदल कर स्टार्च करते हैं क्योंकि चीनी पत्तों में टिक नहीं सकता है, इसलिए उन्हें स्टार्च के रूप में बदल दिया जाता है ताकि वो संरक्षित रहें, इकट्ठा करके रखे जा सके। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स यानी पत्तों का कार्य। फर्स्ट, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। पत्ते जो होते हैं वो पूरे पौधा के लिए खाना बनाते हैं, इसी कारण से वो पौधों के रसोई घर भी कहा जाते हैं। सेकेंड, लीव्स कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन सो दे क्लीन द एनवायरनमेंट। यानी पत्ते जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसी कारण से वो पूरे वातावरण को साफ करते हैं। थर्ड, लीव्स ऑफ प्लांट store food in the form of starch, but some of the leaf are eaten by us. For example, cabbage, spinach, lettuce, coriander store food in their leaf. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो कि अपने पत्तों में ही खाना संजो के रखते हैं, उन्हें हम खाते हैं, जैसा कि हम साग, बंद गोभी और कई सारे अन्य सब्जियों में पाते हैं। Flowers. These are reproductive part of plants, also called bloom or blossom of a plant. It has petals which produce pollen and seeds. It is mostly colorful part of plant. Flowers can grow during a few months. It may grow separately or may grow together as in inflorescence. फूल यह पौधों के प्रजनन अंग होते हैं जिनको ब्लूम या ब्लॉसम भी कहते हैं। इनमें पेटल्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स और बीज पनपते हैं। ये ज़्यादातर रंगीले होते हैं जो कुछ महीनों के लिए खिलते हैं। यह
या तो अलग अलग खिलते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल, जैस्मीन, चमेली इत्यादि, या ये सामूहिक रूप से भी खिल सकते हैं, जैसे कि हम इन्फ्लोरेंस में पाते हैं। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड नेक्टर्स, यानी फूलों का कार्य और नेक्टर्स। फर्स्ट, flowers are reproductive part of the plant. Second, flowers produce fruits which have seeds. These seeds when sown grow into new plants. पहला, फूल जो होते हैं प्रजनन अंग होते हैं पौधों के। दूसरा, फूल जो होते हैं जिनमें फल और बीज आते हैं, इन बीजों को जब रोपा जाता है तो एक नए पौधे जन्मते हैं। नेक्टर, some flowers have sweet smelling liquid as their base which is called nectar. कुछ फूलों में सुगंधित तरल पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग नेक्टर कहते हैं। ये मधुमक्खी और तितलियां इनको चूसती हैं और इनका इस्तेमाल मधुमक्खी मध बनाने में करती है। फूलों का इस्तेमाल मालाओं को बनाने में भी किया जाता है और कभी कभी इसका इस्तेमाल सेंट और परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। फ्रूट्स, इट इज द सीड bearing structure in flowering plants formed from ovary after flowering. Edible fruits are propagated with the movement of humans and animals symbiotic relationship as a means of seed dispersion. Fruits are normally fleshy, seed-associated structure of plant that are sweet or sour and edible in the raw state. फल या बीज से भरे आकृति हैं जिनका विकास फूल से होता है। खाने वाले फल का फैलाव मानव या जानवरों के चाल से होता है। ये जानवरों से सिम्बायोसिक संबंध रखते हैं। बीजों का फैलाव के लिए फल आमतौर पर गूदेदार बीज हैं जो मीठे या खट्टे हो सकते हैं जब इन्हें बिना पकाए खाया जाए। Seeds. A seed is the part of a seed plant which can grow into a new plant. It is a reproductive structure which disperses and can survive for some time. A typically seed includes three parts: embryo, cotyledons, and seed coat. Seeds are often hard and very small, but some are larger. Initially, seeds are dormant, i.e., resting inside their coat for a while. When the seed is ready to develop, it needs water, air, and warmth, but not sunlight. Becomes seeds carry the food that has run to this food store is hidden. बीज के वह भाग चुन सकते हैं। ये प्रजनन आकृति हैं जो फैल सकते हैं और कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बीज के तीन भाग होते हैं: एम्ब्रायोलेड एंड सीड कोट। बीज सख्त और छोटे होते हैं। शुरुआती बीज खोल के अंदर होते हैं। कुछ समय तक जब वह जन्म के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें पानी, हवा और गर्मी पर धूप की आवश्यकता नहीं होती है। बीज में नए पौधे का जन्मने तक का खाना बीज पत्री में होता है। Let's move on to the new topic that is germination of seed. आइए अब नए शीर्षक का शुरुआत करते हैं जिसका नाम बीज का अंकुरना है, यानी germination of seed. Germination of seed is the process by which seed grows into a baby plant. Germination of seed यानी बीजों का अंकुरना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बीज जो है एक नन्हे पौधे में बदल जाता है। इसे जर्मिनेशन कहा जाता है। जर्मिनेशन के लिए गर्मी, पानी, हवा का होना आवश्यक है, पर सूर्य की रोशनी होना आवश्यक नहीं है। बीजों को सही गहराई पर रोपने से वो
नन्हे पौधे में तुरंत ही बदल जाते हैं। इसलिए हमें बीजों को संरक्षित करना चाहिए, उनको खाद देना चाहिए और उन्हें एक सही गहराई पर मिट्टी के नीचे दबाना चाहिए ताकि वो गर्मी, हवा और पानी के माध्यम से खिलकर छोटे पौधे में बदल सके। एडिबल सीड यानी खाने योग्य बीज। एडिबल सीड्स। We eat seeds of many plants like wheat, gram, corn, rice and beans. These seeds are called edible seeds. यानी हम लोग कई पौधों के बीजों को खाते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का और इन्हीं प्रकार से दाल और बीन्स, कई सारे बीजों को हम लोग आहार के रूप में खाते हैं। इन सभी बीजों को हम लोग एडिबल सीड्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चैप्टर का अंत होता है। आपसे नए चैप्टर के साथ अब अगले भाग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।